Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new poem, that is Pitani Seva by Dalpat Ram. Today we are going to start with a new poem, that is Pitani Seva by Dalpat Ram of Standard 11 GSEB Board Gujarati. ओके सो थोड़ा कवि के बारे में कुछ लाइंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद लाइन टू लाइन पोएम स्टार्ट करके उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं. ठीक है. कवि का नाम क्या है? दलपत राम. કવિ, નાટ્યકાર, નિબંધકાર દલપતરામ ડાયાભાઈ કવિનો જન્મ એમના વતન વઢવાનમાં થયો હતો. વ્યવસાય અર્થે, વ્યવસાય મતલબ બિઝનેસ કે પર્પઝ से તેઓ અમદાવાદ રહેતા. અર્વાચીન ગુજરાતી કવિતાના સુધારક યુગના તેઓ પ્રથમ અને મહત્વ સર્જક છે. સુધારાની દ્રષ્ટિએ પણ તેમણે ગુજરાતની મોટી સેવા કરી છે. તેમને પાસેથી દલપત કાવ્ય, ફાબર્સ વિરહ, વેન ચરિત્ર, હુનરખાનની ચડાઈ, માંગલિક ગીતવલી જેવા કાવ્યો અને પુસ્તકો મળ્યા છે. તેમની સમગ્ર કવિતા દલપત ગ્રંથાવલીના 3 ભાગમાં પ્રકાશિત થઈ છે. ગુજરાતના સંસ્કાર ઘડતરમાં એમની કવિતાનો નોંધપાત્ર ફાળો છે. સાદી, સરળ, વર્ણાનુપ્રાસ અને યમક વગેરેથી મધુર ચાતુર્યુક્ત શૈલીમાં લખાયેલી એમની કવિતાને મનોરંજન સાથે નીતિબોધ પણ આપ્યો છે. ગુજરાતના હાસ્ય કવિઓમાં તેમનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે. બુદ્ધિના ચમકારા, મનુષ્ય સ્વભાવની પરખ અને વાસ્તવિકતાની સમજ એમની કવિતામાં વિશેષ રૂપે જોવા મળે છે. તેમની લક્ષ્મી અને મિથ્યાભિમાન નામના 2 નાટકો આપ્યા છે. તો ભૂત નિબંધ, જ્ઞાતિ નિબંધ જેવા નિબંધો પણ આપ્યા છે. તેમના છંદશાસ્ત્રના દલપત પીગળ પુસ્તકે અનેક કવિઓને પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન પૂરા પાડ્યા છે. તેમણે સંપાદન, અનુવાદન કેટલુંક મહત્વ કાર્ય પણ કર્યું છે. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી, હાલની ગુજરાત વિધાનસભા, તો તેઓ મંત્રી હતા. બુદ્ધિપ્રકાશ સામાયિકના તેઓ स्थापना कालથી જ तंत्री હતા. तो ये हो गई पोएट के बारे में बात, उनके फेमस बुक्स, उनके क्वालिफिकेशंस, वो किधर बिजनेस करते थे, उनका बॉर्न किधर हुआ था, ये सब अपन ने पढ़ा. ठीक है. ये सब अपन ने सिर्फ पढ़ा, इधर ये किधर भी रिकॉर्ड नहीं होता है. यूजुअली खाली नाम मेन होता है एंड जो प्रकार है ये पोएम का वो मेन होता है. क्लियर. ये पोएम का नाम क्या है? पितानी सेवा, जिसका प्रकार है उर्मी काव्य, जिसको लिखा गया है बाय दलपत राम डायाभाई. ठीक है. अब पोएम शुरू करेंगे. अब पोएम शुरू होने के बाद उसका शॉर्ट में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. पहले બાળકના જન્મ, ઉછેર અને સંસ્કાર માટે માતાનો ફાળો અનન્ય છે, પરંતુ એમાં પિતાનું સ્થાન પણ કોઈ ઓછું નથી. આ કાવ્યમાં બાળકે પિતાજીને કરેલા લાડ, તોફાન અને મસ્તીનું મડમીઠું ગાન થયું છે. છેક જન્મથી જ પાળી પોષીને પોતાને મોટો કરનાર પિતાજીનું ઋણ અહીં આભાર દ્વારા વ્યક્ત કર્યું છે. ऋण मतलब क्या होता है? कर्ज. બાળપણમાં પિતાની છાતીએ ચડી એમની મૂછો ખેંચી પોતાની દરેક વાત માની હામાં હા કહી ભણાવી ગણાવી સારા ખરાબના વિવેક શીખવ્યો. પોતાને માટે અનેક કષ્ટ સહન કરી છત્રછાયા બન્યા. માંગેલી વસ્તુઓ પૂરી પાડી, ભૂલ થઈ ત્યાં ક્ષમા આપી અને સમાજ વચ્ચે માનવંતું સ્થાન અપાવ્યું. એવા પિતાજી પ્રત્યે ઋણ ચૂકવવા માટે તેમની આજીવન સેવા કરવાની ઈચ્છા સેવતા કવિએ એમની पितृभक्तिનું उत्तम दृष्टांत पूरा पाड़ियों છે. मतलब क्या, उनने पिताजी ने जो भी आज तक उनके लिए किया है उसका कर्ज पूरा करने के लिए उनको पिता की पूरी लाइफ सेवा करनी है. ठीक है. तो इस बारे में पूरी पोएम लिखी गई है. चढ़ो हूँ हतो छोकरो चेक छोटो, पिता पाड़ी पोशी ने मने कीधो मोटो. मतलब मैं तो एक छोटा सा बच्चा था, मेरे पापा ने मुझे पाल पोष के बड़ा किया है. रूढ़ी रीत थी राखतो राजी राजी, भला केम आभार भूलूं पिताजी. मतलब हमेशा मुझे हर चीज़ में खुश रखता था. ऐसे पिता का मैं कैसे आभार भूलूं, कैसे कर्ज भूलूं. चढ़ी चाती ए जे घड़ी मूछ ताणी, कदी अंतरे રીસ આપે ન આણી. કહ્યું મેં મુખે તે કર્યું હાજી હાજી, भला केम आभार भूलूं पिताजी. मतलब छाती पे चढ़ के उनकी मूछ को खींचता था तो भी कभी मुझसे गुस्सा नहीं हुए.
हमेशा मैंने जो भी बोला उसको हमेशा हाँ ही बोला, हर चीज़ में जो मांगता है उसके लिए हाँ बोलते हैं। ऐसे पिता का कैसे मैं आभार भूलूँ, कैसे मैं कर्ज भूलूँ। મને સારી શિક્ષા શીખાવી સુધાર્યો, વળી આપી વિદ્યા વિવેકે વધાર્યો, ભલી વાતના भेद सीधा दीदाजी, भला केम आभार बोलूँ पिताजी। मतलब क्या बोला है कि मुझे अच्छी से मुझे पढ़ाई करवाई, मुझे अच्छे गुण दिए, विवेक दिए, मुझे अच्छी शिक्षा दी, अच्छे गुण दिए, अच्छे विवेक दिए। कुछ दोनों के बाद मिसअंडरस्टैंड तो तुरंत क्लियरिटी से समझाते थे। ऐसे पिता का मैं कैसे आभार बोलूँ। कदी कोटि कोटि सही कष्ट काया, मने चाती माँ लई करी छत्र छाया, अति प्राण थी प्यार जे आनताजी, भला केम आभार भूलो पिताजी। मतलब कभी भी कोई भी कष्ट आता था, कोई भी तकलीफ आती थी तो मेरे हमेशा आजू बाजू मेरी छत्र छाया बन के रहे, मुझ पे कभी तकलीफ आने नहीं दी, हमेशा वो तकलीफ खुद के ऊपर ले ली। और इतना प्राण उसके, उनको खुद के प्राण से भी ज़्यादा प्यारे कौन था? मैं था। तो ऐसे पिताजी के आभार मैं कैसे भूलूँ। उनको खुद के शरीर, उनके प्राण, खुद की लाइफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं था, तो ऐसे पिताजी का आभार मैं कैसे भूलूँ। मने देखी अत्यंत आनंद लेता, सूखे मांगी वस्तु मने लावी देता। पूरो पाड़ ते तो भूले पुत्र पाजी, भला केम आभार भूलूँ पिताजी। क्या बोला है? मुझे देख के सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं, मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जो भी मांगता वो चीज़ मुझे लाके दे देते हैं। और कोई भी गलती होती तो वो उसको भूल के, मुझे नादान समझ के, पुत्र नादान ये समझ के हमेशा भूल जाते थे। ऐसे पिताजी के मैं आभार कैसे भूलूँ। वड़ा वाक माँ आवू तो रांक जानी, दीदो दंड देता दया दिल आनी, तजी स्नेह देह ने दीदी पीड़ाजी, भला केम आभार बोलूँ पिताजी। अगर क्या बोला है? वड़ा वाक में आवू तो रांक जानी, दीदो दंड देता दया दिल आनी। मतलब क्या बोला है कि अगर कोई बड़ी गलती हो जाती थी तो गरीब समझ लेते थे। अगर कोई दंड भी दे देते तो उनको खुद को ही जैसे दया आ जाती थी। अगर कोई दंड भी दे देता, अगर कोई गलती के लिए सज़ा भी दे देते थे तो दया भी उनको ही आ जाती थी। ऐसे पिताजी का मैं कैसे आभार भूलूँ। तजी स्नेह देह ने दीदी पीड़ाजी, मतलब तुरंत मुझे स्नेह से गले लगा देते थे क्योंकि उनने पीड़ा दी। ऐसे पिताजी को मैं आभार कैसे भूलूँ। बनावी गनावी कीदो भाग्यशाड़ी, तथा तुच्छ जेवी बुरी टेव टाड़ी, जनो मध्य जेथी रही कीर्ति गाजी, भला केम आभार भूलूँ पिताजी। मतलब क्या बोला है? बनावी गनावी मतलब पढ़ा के मुझे भाग्यशाली बनाया। भाग्यशाली मतलब बड़ा अच्छा इंसान बनाया। तथा तुच्छ जेवी बुरी टेव ताड़ी, मतलब कुछ गंदी जो आदतें हैं वो मुझे वो आदत आने नहीं दी, मुझे वो आदत से बाहर निकाला, आदत मेरे तक पहुंचने नहीं दी। जनो मध्य जेथी रही कीर्ति गाजी। क्या बोला है? जनो मध्य जेथी रही कीर्ति गाजी, मतलब लोगों के बीच में मेरा नाम बनाया, लोगों के बीच में मुझे फेमस किया। ऐसे पिता का मैं कैसे आभार भूलूँ। લીધો લહાવ ને લેશ જે લહાવ સારો, ઘણું ઘણું હું तात તે તો તમારો, સદા સુખ સારો ઉપાયો राजियाजी, भलो केम आभार भूलूँ पिताजी। લીધો લહાવ मतलब क्या? लिया आनंद ने लईश जे लहाव सारो, घणु घणु हूँ तात ते तो तमारो, मतलब जो भी मुझे आनंद मिला है उसके लिए हमेशा मैं आपका आभार मानूंगा। सदा सुख सारू उपायो राजी आजी, मतलब हमेशा मुझे सुखी रखने के ही उपाय दिया आपने। ऐसे पिता का कैसे आभार मैं भूलूँ। मने निरखता नेत्र में नेर लावी, लही दाबता चाती साथे लगावी, मुखे बोलता बोल मीठा मीठा जी, भला केम आभार भूलो पिताजी। मतलब जैसे ही मुझे देखते तो हमेशा उनके आँखों में जैसे आंसू आ जाते, मुझे देखते ही उनके आँखों में आंसू आ जाते। लई दापता चाती साथे लगावे, जैसे ही मुझे देखते तो तुरंत हमेशा छाती से लगा लेते थे, मतलब मुझे तुरंत हक कर लेते थे। मुखे बोलता, हमेशा मुँह से मीठे बोल ही बोलते थे। ऐसे पिताजी के कैसे आभार मैं भूलूँ। हतो बाढ़ हूँ आज सुधी अजानियो, उरे आपनो गुण एके न आव्यो, हवे हूँ थयो जानी तो आज आजी, भला केम आभार भूलूँ पिताजी।
मतलब मैं बच्चा आज तक ये बात से अजानित, अजानित मतलब आज तक ये बात से अजानित था, मतलब अनजान था। आज मुझे ये बात समझ आई कि दिल से मेरे पास आपका एक भी गुण नहीं है। ઉરે मतलब दिल હૃદયમાં આપનો ગુણ એકે ન આવ્યો. હવે હું થયો જાણી તો आजी मतलब आज मुझे ये बात समझ आई है, आपका आभार कैसे भूलूं पिताजी. जगन्नाथ जी जीवतो राक्षे जो હૈયાથી તમારી અમારી હશે जो કરું સેવના દિલ સાચે સદાજી भला केम भूलो पिताजी. अगर जगन्नाथ भगवान है, उनने अगर मुझे ज़िंदा रखा, हयाती तमारी हमारी हशे जो मतलब क्या बोला है, क्या बोला है, भने भावती जो घने चंद सारा मतलब जो अच्छे भावना से तुम्हारे ये कविता, जो अच्छे भावना से ये कविता पढ़ेगा. चंद मतलब एक कविता, एक छोटा सा पैरा. पितृभक्ति पामी न थशे नठारा मतलब क्या, पिता के लिए जो भक्ति भाव है वो उनका नठारा मतलब खराब नहीं जाएगा, उनको वापिस पिता के लिए भक्ति भाव जाग उठेगा. रूढ़ु ज्ञान ले लागशु शुभ कामे मतलब अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा लेके अच्छे काम पे, कल्याण काम पे लग जाएंगे. रचिया चे रूढ़ा चंद दलपत राम जी मतलब इतने सुंदर, इतने अच्छे जो कविता के छोटे छोटे पैराग्राफ्स उनने रचे हैं वो दलपत राम जी. ठीक है. सो ये पूरी पोयम मैं वापस एक बार रीड करूँगी. चढ़ो हूँ હતો છોકરો ચેક ચોટો પિતા પાડી પોષી મને કીધો મોટો રૂઢી રીતથી રાખતો રાજી રાજી ભલા કેમ આભાર ભૂલું પિતાજી છડી ચાતી એ જે ઘડી મૂછ તાની કદી અંતરે રીસ આપે ન આની કયું મેં મુખે તે કર્યું હાજી હાજી ભલા કેમ આભાર ભૂલું પિતાજી મને સારી શિક્ષા શીખાવી સુધાર્યો વળી આપી વિદ્યા વિવેકે વધાર્યો ભલી વાતના ભેદ સીધા દીધાજી ભલા કેમ આભાર ભૂલું પિતાજી કદી કોટી કોટી સહી કષ્ટ કાયા મને ચાતીમાં લઈ કરી છત્ર છાયા અતિ પ્રાંતથી પ્યાર जे आनताजी भला केम आभार भूलो पिताजी मने देखी अत्यंत आनंद लेता सुखे मांगी वस्तु मने लावी देता पूरो पाड़ते तो भूले पुत्र पाजी भला केम आभार भूलो पिताजी वड़ा वाक में आवू तो रांक जानी दीदो दंड देता दया दिल थी आनी तजी स्नेह देहने दीदी पीड़ाजी भला केम आभार भूलो पिताजी भनावी गनावी कीदो भाग्यशाड़ी तथा तुझ जेवी बुरी तेव ताड़ी जनो मध्य जेथी रही कीर्ति गाजी भला केम आभार भूलो पिताजी लीधो लहाव ने लईश जे लहाव सारो गुण घणું ઘણું હું तात તે તો તમારો સદા સુખ સારું ઉપાય રાજી આજી ભલા કેમ આભાર ભૂલું પિતાજી મને નિરખતા નેત્રમાં નીર લાવી લઈ દાવતા ચાતી સાથે લગાવે મુખે બોલતા બોલ મીઠા મીઠાજી ભલા કેમ આભાર ભૂલું पिताजी હતો બાળ હું આજ સુધી અજાણ્યો ઉરે આપનો ગુણ એકે ન આવ્યો હવે હું થયો જાણી તો आजी भला केम आभार भूलो पिताजी जगन्नाथ जी जीवतो राक्षे जो हयाती तमारी हमारी हशे जो करू सेवना दिल साचे सदाजी भला केम आभार भूलू पिताजी बने भावती जो गणे चंद सारा पितृभक्ति पामी न थाशे नठारा रूढ़ु ज्ञान लई लागशे शुभ कामे रच्या चे रूढ़ा चंद दलपत रामे पिताजी. ठीक है. सो गुड बाय एवरीवन. We'll end this lecture by this poem and we'll continue with the next chapter of poem in the next lecture. Goodbye. Hello students, this is Hetal Bhandari.